Hello all, welcome to my YouTube channel Physics Maestro. Sorry for the last video that my voice was very low in the previous video because I was very nervous since it was my first video. So yes, today I have come up with another amazing problem from the same Pathfinder problem book, optics chapter. It is question number 3. Question number 3 of the challenge your understanding part. So let us now read as the question, and if you guys want to try, you can give it a try. Pause the video and give it a try for some time, and then see the solution and learn from it. And yesterday some of my friends suggested me to use English, so yes, today I will take their suggestion and go with it. So yes, let us now read the question. The question says a large number of thin converging lenses, each of focal length f, are placed at equal distance L from each other. At equal distance L from each other, so that their optical axes coincide. The distance L is negligible, small as compared to the focal length f. Light ray is made incident to the common optical axis on the first lens at a distance h from the optical axis in the figure. Deduce a suitable equation of the path the ray will trace during its passage through the stack of lenses. So the question just want to say that कि यहाँ बहुत सारे लेंसेज हैं और हर लेंसेज के बीच, हर कंसेक्यूटिव लेंसेज के बीच या फिर हर सक्सेसिव लेंसेज के बीच का जो सेपरेशन है वो है L, और हर लेंसेज का जो फोकल लेंथ है वो है F, और सारे ही इक्वली प्लेस्ड हैं L लेंथ की दूरी पे, और शुरुआत में H हाइट के डिस्टेंस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है लेंस पे. वहाँ से हमें डिड्यूस करना है कि वो जब लाइट रे वहाँ से पास करते हुए जाएगा लेंसेज से तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा लाइट रे के साथ में, और हमें उसका इक्वेशन निकालना है पाथ का. तो इसमें आई विल ट्राई टू गिव 2 methods. Actually I have 4 methods for this problem. I have not written those methods in this PDF, but if you guys want, I will make video on it. That would not be the issue for me. So yes, let us now see the approach 1. So first let us now prepare the groundwork, foundation, like what does the question want to say, what does we have to do, how we have to proceed. So first we are going to take some assumptions, or these are not assumptions actually. If you analyze it properly you will see that yes, ये तो होना ही था. तो ऐसा, तो assumption 1, after reflecting from these lenses light ray will bend. So see, this is because like this. If you see here, let's say, so yes, let's say this is the lens, and the first lens, second lens, third lens. So let us say the light ray will come here, it will bend a little to here, then it will bend a little more to here, and if we connect these dots, we will be able to see that this is going to be a curvilinear path. The light ray is going to follow a curvilinear path like this. So yes, the light ray should start from here. So sorry for this little error. So yes, and I am saying that when the light ray will fall in, so see, जब पहली बार लाइट रे गिरेगा लेंस पे तो h हाइट के डिस्टेंस पे है, और जब हम एक जो डिमेंशन ले रहे हैं, एक जो dx थिकनेस ले रहे हैं लेंस का, इस पे और हम बात करेंगे आगे जाके, तो वहाँ पे जब गिरेगा तो लाइट रे एक लेंस यानी जो बेस है उसका, मतलब जो x एक्सेस है वहाँ से y डिस्टेंस पे दूरी होगा. हम y के लिए ये भी कह सकते हैं कि y कुछ नहीं है, y जस्ट डिस्टेंस है. क्या डिस्टेंस है कि जब भी लाइट रे लेंस पर गिरने वाला होगा तो वो x एक्सिस से लेंस के कितने कितने ऊपर वो लाइट उस पर गिरेगा, और वही है बस y. तो अगर जैसे हम बोले कि x = 0 पे, यानी कि शुरुआत में, तो y क्या होगा, तो h होगा. और वही अगर हम जब बोल रहे हैं कि जब हम ds थिकनेस अज्यूम कर रहे हैं, ये वाला ds थिकनेस, तो यहाँ पे ये जो है हाइट जिस पे गिरेगा ये होगा y. तो यस, सो द सेकेंड assumption, paraxial rays to be valid, h is not very high, otherwise marginal rays will come into play. So yes, so I hope you guys know the difference between marginal rays and paraxial rays. So in the JE domain we have to study only paraxial rays. Marginal rays में क्या करते हैं हम लोग, मतलब मुझे जितना आइडिया है कि
ज्योमेट्री के बेसिस पे सारा क्वेश्चंस को डील करना होता है उस वक्त में, मतलब ज़्यादा आइडिया तो हमको भी नहीं है, टीचर ने तो हमें बस इतना ही बताया कि जेई में भी एक आध बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि चाहते तो थे कि पैराक्शल से बने, मतलब पैराक्शल से बन जाएगा वैसा क्वेश्चन तो दे दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका जो एसेंस है वो मार्जिनल रेस है। सो खैर उन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। Let us now move on to our solution part. So yes, so our next assumption, each lens has same focal length f. So the focal length for each lens is going to be f, and yes, it also given in the problem, and it is also given in the problem. Our fourth assumption, it is also given in the problem, that is length L between every successive lenses. For every successive lenses, their separation distance, the distance of separation between them is L. So let's move on to second slide. So yes, as you can see this, these are all the solutions, and I have already prepared it and shared it on my Telegram channel. If you guys want these PDFs, these are for free. You can download it from my Telegram channel. You have to just join the channel and you can easily access these PDFs, and there are very amazing problems. Like मुझे तो बहुत मज़ा आया था वैसे PDFs क्रिएट करके। कुछ PDFs हैं पॉइसन्स इक्वेशन से और लैपलेस इक्वेशंस और 3 गोल्डन वेक्टर्स, जो कि आईरोडोव थ्योरी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, उसके शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ छोटे से प्रिपेयर कर लिए थे, तो मैंने उसे भी शेयर किया है, जिसमें डी वेक्टर, पी वेक्टर और ई वेक्टर वगैरह के टर्म्स में मैंने बातें की हैं, और कुछ इरोडोव के प्रॉब्लम्स भी उसमें इंक्लूड किए हैं। और कुछ PDFs तो ऐसे हैं कि जिसमें मतलब एक ही दिन में 3 to 3.2 के व्यूज़ भी गए हुए हैं टेलीग्राम पे। सो आई एम न्यू टू यूट्यूब चैनल, सो इस पर अभी तो वैसा कुछ नहीं है, बट येस आई होप you guys are loving my content, and I will get the same popularity as I am getting on the Telegram channel. So yes, and actually I am active on multiple channels on the Telegram, and you guys can also join our discussion arena. There we discuss doubts of others. We also post our doubts also. So like जिन्हें भी वो डाउट आता है वो क्लियर कर देते हैं, और उनमें से मैक्सिमम डाउट होते हैं जो कि गूगल वगैरह पे तो नहीं मिलने वाले हैं, AITS लेवल प्रॉब्लम्स और पाथफाइंडर्स के होते हैं। सो यस, यू गाइज नो कि गूगल पे क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। सो यस, लेट अस नाउ मूव ऑन फर्दर टू आवर सॉल्यूशन पार्ट. सो यस, this is the part I was talking about, foundation thought. This is the foundation approach. Like we had to think this first, and then we had to move on to further calculations. Like this was the essential segment. So yes, what we have written here. So for n number of lenses in x distance with the gap of L in dx length. So yes, what I mean by this line is that कि फ्रॉम 0 to x, लाइक क्वेश्चन में मेंशन है कि बस लेंसेज दिए हुए हैं। मैंने क्या मान लिया कि x लेंथ तक ये लेंसेज दिए हुए हैं, मुझे x लेंथ तक दिए हुए हैं, और हर कंसेक्यूटिव लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L, वो है L। तो इसी के बेसिस पे फर्दर कैलकुलेशंस हैं। सो यस, सो ये फर्दर कैलकुलेशंस क्या है, इन एवरी L लेंथ हर L मीटर पे मान लो, लाइक L मीटर पे 1 लेंस हो गया, तो 1 मीटर पे कितना लेंस होंगे, 1/L लेंस, सिंपल यूनिटरी। उसी तरह से अगर हम कह दें कि अगर x डिस्टेंस पे n लेंसेज है विथ सेपरेशन ऑफ L, और अगर हमको कहना है कि dx पे क्या होगा, dx थिकनेस जो हम पहले अज्यूम किए थे उस पर क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये जो dn पार्ट है मेरा, जो dn नंबर ऑफ लेंसेज होंगे dx थिकनेस में, वो क्या होंगे 1 × dx। यूनिट मीटर में कितना हो गया 1/L लेंस, तो dx मीटर में कितना हो जाएगा, यूनिट मीटर टाइम्स dx, और इतना ही नंबर ऑफ लेंसेज आ जाएगा dn, तो dn का वैल्यू आ गया dx/L। सो और f इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, मतलब मेरा फोकल लेंथ f नेट, f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो वो का समेशन ऑफ 1/f1 से लेके n टाइम्स 1/f नेट से लेके n टाइम्स, और ये तो बस मतलब छोटा सा मैथ्स है, लाइक 2 + 2 + 2 6 टाइम्स विल बी इक्वल टू 6 × 2. So yes, so 1/f net will be just equal to 1/f net equals 1/f plus 1/f n times. So we can just write this 1/f net equals n times 1/f, and this is the equivalent focal length for n lenses. So let us now deal for the dn lenses. So what is going to be for the dn lenses? So for the dn lenses, f equivalent will be equals 1/f equivalent
times equals dn times 1 by f. Remember 1 by f equivalent is summation of 1 by f1 1 by fi, where I will be equal to 1 to n time 1 to n. So here also 1 by f equivalent for dn lenses will be dn times 1 by f and 1 by f, and for dn we have calculated the value dx by l. So yes, 1 by f equivalent for dn lenses, it will be equal to dx by lf. L is the separation distance, f is the focal length, dx is the thickness of the lenses that we have considered. So yes, so this is the first method. I have one more method for this. I hope you guys will love these solutions. So let us see the first part. So let us say this is the first लेंस, दिस इज द सेकंड लेंस. हाँ, यहाँ पे ये मानने का ज़रूरत नहीं है कि ये पहला लेंस है, ये बीच का लेंस है. कोई भी पहला लेंस पे तो ये है कि एच पे आकर डायरेक्टली गिर रहा है, लेकिन हम क्या मान लिए कि कहीं पे भी बीच में दो लेंसेज हैं और वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्टेड होके आए और उस पर पड़ गया. तो जब पड़े तो हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, तो ये थीटा एंगल फॉर्म किए और यही लाइट रे का पाथ ये था. लाइट रे जाना तो यहाँ चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ मुड़ गया. एंगल ऑफ डिविएशन, वहाँ पे डिविएशन आ गया. तो ये क्या हुआ, डी थीटा का यहाँ पे वो आया, डिविएशन आ गया. और ये डी थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज है. अगर ऐसे भी देख सकते हैं, चलो ये इसको मान लेते हैं अपन 0,0. और अगर ये मेरा 0,0 हो गया और ये मेरा एक्स एक्सिस, तो ये मेरा वाई एक्सिस, तो यहाँ से ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये डी थीटा हो गया. अब यहाँ से अगर हम फर्दर कैलकुलेशंस करें, ये मेरा डी थीटा और ये जो होगा ये मेरा थीटा, तो थीटा और डी थीटा एक्सटीरियर एंगल से ये आ गया थीटा प्लस डी थीटा. अगर हम कह दिए कि दो लेंसेज के बीच का जो था डी एक्स थिकनेस में, तो हमको नहीं पता है ना कि कितने देखो, हमें ये पता था कि हर लेंसेज के लिए, दो सक्सेसिव लेंसेज के लिए एल लेंथ है, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता ना कि डी एक्स में कितने सारे लेंसेज हैं. मैंने तो बस एक जनरल सा इक्वेशन लिख दिया कि डी एन इक्वल्स यस, वो जो वैल्यू था डी एन इक्वल्स करके डी एक्स टाइम्स 1 बाई एल. तो वो जो था कि डी एन लेंसेज होंगे डी एक्स थिकनेस में, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता ना कि डी एन जो लेंसेज होंगे उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा. तो उनके बीच का सेपरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि जो लाइट रे था वो यू डिस्टेंस ट्रैवल करके गिरने वाला था इस पे, दूसरे वाले पे. हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़ होने का ये ज़रूरत नहीं है कि अरे कुछ भी हो, अगर डी एक्स थिकनेस भी है तो उसके बीच में भी तो जितने भी लेंसेज होंगे उनके बीच का भी तो सेपरेशन एल ही होगा ना. हम ऐसा क्या मान रहे हैं ना कि चलो ऐसा मान लेते हैं इसको कि एक पूरा वो है आइस का टहरी होता है ना, मतलब पूरा बड़ा सा आइस का ब्लॉक है मान लो, मतलब ब्लॉक है मान लो ग्लास का. लेंस भूल जाओ, इतना सारा मानो कि पास सटा हुआ है, ऐसा समझो ना कि पूरा ब्लॉक ही दिख रहा है. और अगर हम ब्लॉक ले और उसके बीच में मान लो कि हम अज्यूम करें कि वो है लेंसेज हैं, तो ठीक है, इतना समझ सकते हैं अपन. खैर, यहाँ कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है, इससे आगे कन्फ्यूज़ होने वाला पार्ट आगे भी है. तो यस, अगर हम मान लिए कि ये यू डिस्टेंस पे इसको गिरना था, लाइट को दूसरे लेंस पे यू डिस्टेंस ट्रैवल करना था, लेकिन वो वी पे ही गिर गया, तो कैलकुलेशंस क्या हो सकता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये थीटा, ये यहाँ पे आ गया थीटा प्लस डी थीटा. टैन थीटा क्या होगा, वाई बाई वी, ये आ गया वी इक्वल्स कॉट थीटा प्लस, ये हो गया पार्ट. फिर यहाँ पे इस थीटा के लिए ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये वाला जो पार्ट है, इस थीटा के लिए क्या होगा, ये वाई और ये बाई यू. तो यहाँ पे वाई बाई यू इक्वल्स टैन थीटा. यू का वैल्यू आ गया, वी का वैल्यू आ गया. ये डी थीटा क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप है, लाइन का चेंजिंग है, तो कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. स्लोप कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन का, ये तो मेरा एक्सिस है और ये लाइन है, इसका स्लोप हमको लिखना है, किस तरह से लिख पाएंगे, थीटा प्लस डी वाई बाई डी एक्स करके स्लोप. तो बस वही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन थीटा. और यस, यहाँ पे आ गया डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ डी वाई बाई टेन थीटा. और डी थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस का साइन भी आएगा, ये वाला यहाँ माइनस का साइन भी आएगा. सो यस, अब बस फर्दर कैलकुलेशंस है, बस लेंस फार्मूला 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू इक्वल्स 1 बाई एफ इक्विवेलेंट. और v का वैल्यू था 1 बाई वाई टाइम्स कॉट थीटा प्लस डी थीटा, और 1 बाई यू का वैल्यू था 1 बाई वाई कॉट थीटा,
और कॉट ऑफ थीटा प्लस डी थीटा को टैन थीटा प्लस डी थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा। यहाँ से हमें एक फील आ रहा है सिंपल सा, और ये वाई देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या है, सिंपल सा टैन थीटा प्लस डी थीटा माइनस ऑफ टैन थीटा। ये हमें क्या कैसा फील आ रहा है कि ये मतलब ये ऐसा फील हो रहा है कि एच प्लस डी एच माइनस डी एच लिखा हुआ है, नहीं, थीटा प्लस डी थीटा माइनस ऑफ टैन थीटा। यहाँ पे बस वैसा ही है, एच प्लस डी एच माइनस ऑफ एच। और ये तो इसे छोड़ दो, डेल्टा एच छोड़ दो, मतलब वैसे लिख दिया था मैंने समझाने के लिए। तो यस, ये डी एच आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा, टैन ऑफ थीटा आ जाए। ये थीटा के टर्म्स में हो रहा है, यहाँ पे एच के टर्म्स में हो रहा था, ये थीटा के टर्म्स में हो रहा है, और ये डी थीटा है और ये डी एच है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी टाइम्स ऑफ एच, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी टाइम्स ऑफ टैन थीटा आ गया यहाँ पे। और ये बाई वाई, और ये डी एक्स बाई एल एफ, और डी ऑफ टैन थीटा बाई डी थीटा को लिख सकते हैं ना, सेक्स स्क्वायर थीटा। हम बस यहाँ सब कैलकुलेशन को इजी करना चाह रहे हैं, मतलब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम बस तरह तरह का यहाँ पे बस वैल्यूज़ डालते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सो यस, ये आ गया वैल्यू डी थीटा। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ पे भी डी थीटा से डिवाइड करना होगा, यहाँ डिवाइड यहाँ डिवाइड, तो ये डीठा का डी यहाँ वाला डी थीटा यहाँ उठ के चला जाएगा, और ये वाला वाई यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म आ गया यहाँ पे। और ये जो डी एक्स है, डी एक्स के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख रखा था, डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ डी वाई बाई टैन थीटा। तो यस, यहाँ पे भी वाई बाई एल एफ इंटू में माइनस ऑफ डी वाई बाई टैन थीटा, ये आ गया यहाँ पे वैल्यू। बस फर्दर अब बस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है, अगर तुम सब चाहो तो कर लेना खुद से, मैंने तो बस यहाँ करके दिखा दिया है कैसे करना है। यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर थीटा टैन थीटा डी थीटा, यहाँ जो टैन थीटा आया था ना, डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ डी वाई बाई टैन थीटा, तो ये यहाँ चला गया, ये डी वाई यहाँ रह गया वन बाई एल एफ। और इनिशियल क्या था, जब मतलब लाइट यहाँ है, ये लेंस है, ये लाइट है यहाँ जीरो पे, और फिर क्या हुआ, थीटा पे गिरते हुए देखे हम, जब डी एक्स माने थे हम वहाँ पे देखे कि थीटा पे आके गिर रहा है लाइट, यहाँ तो जीरो पे बन रहा है ऐसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर थीटा टैन थीटा, ये जीरो, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल वैल्यू। बस इसको सॉल्व किए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा वैल्यू आ गया, टैन थीटा का ये वैल्यू आ गया। अब टैन थीटा मेरा क्या था, स्लोप, तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस टैन थीटा था, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप था ना डी थीटा का जो डेविएशन आ रहा था वो, और यहाँ पे वो वैल्यू रूट का, और बस यहाँ पे निगरेट मारे। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, वाई इक्वल्स एच कॉस अल्फा से यहाँ से भी सब्स्टिट्यूशन कर दिए, डी वाई हो गया माइनस ऑफ एच ऑफ साइन अल्फ़ा, और ये हो गया। अब तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, इस वाले को सॉल्व करके कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ, ये जो भी यहाँ पे टर्म, ये वाला तुम्हारा डी अल्फ़ा आ जाएगा। सो यस, यहाँ कैलकुलेशन अपना देख लेना, बस मैंने बस कर दिया ऐसे। तो यस, और यहाँ पे अगर लिमिट जब पुट करना है, अल्फ़ा इक्वल्स एच पुट करेंगे, ये मेरा क्या था यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच था, ये एच था मेरा इनिशियल, यहाँ पे अल्फ़ा एच मान लिया मैंने, तो ये ज़ीरो हो गया यहाँ पे वैल्यू पहला। फिर दूसरी में क्या था, वाई था ऊपर में, तो मैंने यहाँ दूसरे में वाई मान लिया, तो ये हो गया। तो ये दूसरा लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया मेरा वैल्यू। सो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सो यस, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड पार्ट, सेकंड मेथड। सो यस, ये रहा मेरा सेकंड मेथड, और यहाँ पे बस वही है, ये प्रीवियस रिजल्ट जो है फॉर डी एन लेंसेज एफ इक्वलेंट क्या होगा, डी एक्स बाई एल एफ, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ टैन थीटा। ये स्लोप यहाँ बहुत छोटा सा था, तो डायरेक्टली कह सकते ये बस माइनस ऑफ थीटा ही रह जाएगा। और तीसरा चीज़ क्या है कि अगर मान लो हमको एंगल ऑफ डेविएशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ये एच रहा, और ये अगर सम एंगल डेल्टा से ये कुछ ऐसा हुआ तो क्या लिख सकते हैं, टैन ऑफ डेल्टा इक्वल्स डेल्टा, डेल्टा छोटा है तो डेल्टा इक्विवेलेंट टू टैन ऑफ डेल्टा कैसे लिखेंगे, ये वाला एच और ये वाला एफ, ये वाला एच और ये वाला एफ, और यही हो गया मेरा डेल्टा। ये तो बस बेसिक सा था। और मैंने देखो पहले क्या बोला था कि ये जो y है, y कुछ नहीं है, ये बस y क्या है, x से लेके लेंसेज के बीच का, x से लेके लेंसेज तक का डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पे आके लाइट गिरेगा ना, वहाँ से लेके x एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो होगा y। तो यहाँ से यहाँ तक y लिए थे, और वही हम कह दिया यहाँ पे कि जब x इक्वल टू 0 आएगा वैल्यू यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे, तो y का वैल्यू आ जाएगा h, ये रहा h। और यहाँ पे क्या होगा, स्लोप देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस 0। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो बस यहाँ पे मैंने क्या था, डी ऑफ टैन थीटा था ना, सो वाई बाई एफ टैन ऑफ, पहले भी लिखा था ना हमने ये वाला, एच बाई एफ नेट डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया टैन थीटा, और यही हो गया इक्विवेलेंट थीटा के, और ये यहाँ पे चेंज हो गया, बस वही यहाँ पे भी है, डी ऑफ थीटा वाई बाई एफ नेट।
बस यहाँ पे पुट हो गया और ये जो डी एक्स था वैल्यू यहाँ पे आ गया और सिंपल कैल। और ये जो थीटा देखो, ये जो डी थीटा था पहले वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, डी ऑफ वहाँ पे सॉल्व किए थे ना, tan ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस ऑफ tan थीटा, वहाँ पे कमेंट किया कि वो तो सिंपल सा डी ऑफ tan थीटा आएगा और यहाँ पे tan थीटा क्या था, बहुत स्मॉल, तो हमने कह दिया कि वो थीटा के बराबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ऑफ थीटा डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डी ऑफ थीटा, डी ऑफ tan थीटा की जगह पर डी ऑफ थीटा बाई डी एक्स। तो ये हो गया और ये रहा, और तो ये थीटा हो गया थीटा के लिए। बस अब जो वो वाला वैल्यू था डी वाई बाई डी एक्स, tan थीटा के लिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1 बाई डी एक्स, और ये रहा वैल्यू। फिर यहाँ से ये वाला वैल्यू आ गया डी स्क्वायर के टर्म्स में इंटू 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 इंटू, बस। और ये तो बस इक्वेशन ऑफ एस एच एम जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू ये आ गया मेरा। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ये मेरा तीसरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इतनी बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है मत पूछो यार, बार बार वॉइस इशू हो जा रहा था। सो यस, और उनको खुद भी देख के अच्छा नहीं लग रहा था, तो मतलब इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। सो आई होप दिस टाइम दिस वीडियो विल बी फाइन। सो यस, और यहाँ पे तो बस वही, अब तो बस इक्वेशन लिखना है, अपन तो चैम्पियन है इसमें। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ एस एच एम का, और इसका डिफ्रेंशिएटेड पार्ट ये रहा। अब हमने क्या बोला था, x इक्वल टू 0 जब रहेगा तब y इक्वल टू h हो जाएगा। तो h यहाँ पे क्या हो गया, ये x इक्वल टू 0, तो साइन फाई, ये साइन फाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा x इक्वल टू 0 पे। तो बस ये वाला वैल्यू आ गया। तो बस अब यहाँ से क्या हो गया, ये वाला कॉस फाई 0, तो फाई इक्वल्स पाई बाई 2। सो h इक्वल्स का ये वैल्यू था, h इक्वल्स a आ गया यहाँ पे वैल्यू। अब जो इक्वेशन मेरा था ये रहा वैल्यू, h का वैल्यू ये आ गया, h ऑफ साइन टाइम्स ये, फाई का वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पुट कर दिया मैंने, आ गया आंसर। सो यस, ये रहा आंसर। आई होप यू गाइज लव दिस 2 मेथड्स। सो यस, कमेंट सेक्शन में तुम सब लिख सकते हो कि और भी जो 2 मेथड्स है वो मुझे शेयर करने हैं या नहीं। आई विल शेयर देम, शेयर करने में मुझे कुछ नहीं जा रहा। सो यस, अगर ये सब PDF डाउनलोड करना हो सो पिन कमेंट्स में टेलीग्राम लिंक दे देंगे हम, वहाँ से यू गाइस कैन जॉइन इट। सो यस, रिमेनिंग प्रॉब्लम solution will be posted soon. Please like and subscribe my channel. The views are like, I'm very grateful to you all guys. Like I had not imagined कि इतने अच्छे रिस्पॉन्स जाएगा सॉल्यूशंस का। सो यस, if you guys are loving my video, please do like, share and subscribe. And yes, these things motivates me. Thank you all, bye bye. इसमें बोला तो उसमें कैसे सुना?